So welcome back guys to Uncancering Cancer with Dr. Nitin Singhal. So in this fifth episode, we are going to talk about gynecological cancer, mainly uterine and cervical cancer. So thanks to debatable stunt by Poonam Pandey in Jan Feb, that उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को इस cervical cancer की particularly awareness आई and I was shocked after checking the scenario in India. So please just elaborate more about it. What is the cervical cancer, and I also heard that this is the only preventable cancer. That's what gynecologists, renowned gynecologists are claiming. So ये क्या वैक्सीन है और इसमें कैसे प्रिवेंट होता है ये cervical cancer? So just to elaborate more, जो आपने बात करी, gynec cancers खाली cervix and uterus से तक limited नहीं है. तो cervix एक uterus का part है, जो uterus का जो मुख वाला region जहाँ से जो monthly flows या फिर बच्चा जब बाहर निकलता है जो region होता है उसको हम cervix बोलते हैं. And बाकी जो पूरा बचा हुआ जो part है उसको uterus बोलते हैं. So uterus and cervix they are basically one and only thing, but cancer wise they are two different entity. So that is yes they are one of the common cancers. But female cancers in general अगर हम बात करें तो सबसे common breast cancer आ जाते हैं, then cervix cancer, then obviously uterus and ovary cancers form a significant contribution in terms of gynec cancer. And उसके अलावा जो uncommon cancers हैं, जो अपना vulval cancers हैं, vaginal cancers. So rightly said कि cervical cancer has garnered a lot of attention because cervical cancers एक बहुत ही common cancer है. As I said, it is the second most commonest cancer in Indian females. ठीक है. Again, rural population it is the commonest, and urban population में thankfully now numbers are decreasing and it has become now second to breast cancer. Important fact क्या है? Why this is getting so much of attention? Breast cancer annually 1,40,000 से 1,50,000 cases diagnosed होते हैं इंडिया के अंदर, जिसमें से around 30 to 40,000 they die of breast cancer. But even more shocking is 1,22,000 cervical cancers diagnosed होते हैं approximately in a year, which is lesser than breast cancer. But if you give attention to the death numbers, which is close to 75 to 80,000, so almost 65 to 70%, यानी कि 3 में से 2 ladies जो cervical cancer diagnosed होते हैं, they are dying. And that too, जैसा you rightly said, it's a cancer, which is a preventable cancer. That too in ladies जिनके अंदर ये जो एज ग्रुप जिसके अंदर ये आती है बीमारी 30 to 60, यानी कि मोस्ट प्रोडक्टिव एज ऑफ ग्रुप ऑफ द लाइफ. एंड अभी थोड़े दिन पहले वुमेन डे के 8 मंथ को, एंड हम सब लोगों ने बहुत सारे इमोशनल वीडियोस देखे होंगे कि हाँ एक वुमेन कितनी इंपॉर्टेंट होती है फैमिली के लिए, मदर, फिर उसके बाद एक वाइफ, एक सिस्टर, पता नहीं कितने सारे मल्टी रोल्स प्ले करते हैं. एंड इमेजिन लूजिंग अ फीमेल every 7 minutes. India is losing one such female to this cancer, which is absolutely preventable. So obviously बहुत shocking है. And इसीलिए thankfully now अभी लोगों में awareness आ रहा है कि there is a vaccine for this cancer, and कुछ गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रही है. एंड जैसा कि अभी निर्मला जी ने भी अपने जो लास्ट स्पीच के अंदर बोला है कि इस वैक्सीन को प्रमोट करा है, एंड काफी लोगों को उसके बाद अवेयरनेस आई है. तो थैंक्स टू द पॉलिटिशियंस जो इसके ऊपर एक एक्टिव काम कर रहे हैं. सो ये वैक्सीन जस्ट लाइक कोरोना वैक्सीन की तरह 3 डोजेस लेने से एट राइट टाइम क्या होता है, बिकॉज ये जो कैंसर है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जैसे कोरोना वायरस था वैसे एक पैपिलोमा वायरस होता है, जो हाई रिस्क वायरस जो होता है उसके अंदर वैराइटीज होते हैं, उसी कारण ये कैंसर होता है. एंड इसके एक्सपोजर से पहले, एक्सपोजर कैसे होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से, यानी कि जब आप सेक्सुअली एक्टिव हो यानी शादी से पहले, यानी कि आपके अर्ली जो आपके टीनेज ग्रुप एज जो है 13-14 साल की जो उम्र है उसमें अगर आप ये वैक्सीन को ले लें 3 डोजेस आपको लाइफ लॉन्ग इस कैंसर से प्रिवेंट कर सकते हैं. तो इसीलिए ऑब्वियसली ये कैंसर इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है. ओके, तो उसके बाद अगर फॉर एन एग्जांपल टीनेज में नहीं ली वैक्सीन, तो उसके बाद कैन वी टेक वैक्सीन और दिस? सो वैक्सीन के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, आइडियली इट शुड बी टेकन बिफोर द एक्सपोजर. कोई भी वैक्सीन की जब बात करते हैं एक्सपोजर से पहले लेनी चाहिए ताकि उससे इम्यूनिटी डेवलप हो. अब जैसे मैंने कहा कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज द वायरस जिससे कैंसर होता है. नाउ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में आई शेड सम लाइट. ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक कॉमन वायरस है जो ऑलमोस्ट जो भी कोई सेक्सुअली एक्टिव है तो ऑलमोस्ट हर किसी को एट सम पॉइंट ऑफ देयर लाइफ टाइम दे गेट इन्फेक्टेड बाय दिस. अब जैसे ही मैंने सेंटेंस बोला होगा आई एम क्वाइट श्योर काफी लोगों की आईब्रोज रेज हुए होंगे, सबको डर लगने लगा होगा कि यार मेरे को कुछ ना कुछ हो जाएगा. बट इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ऑलमोस्ट इनवेरिएबली ये सारे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस में से
सारे लो रिस्क वायरसेस हैं एंड 4 से 5 जो वायरस है जो बहुत ज्यादा हाई रिस्क रहता है जिनका कैंसर होने का, उसमें से भी 2 वैरायटी 16 एंड 18 जिसमें रिस्क सबसे ज्यादा होता है एंड व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर 80 to 85% ऑफ द सर्वाइकल कैंसर। सो इन जो वायरसेस के अंदर भी खास बात एक और जो नोटिस करने वाली है कि हमारा भगवान ने जो सिस्टम बनाया है उसके अंदर एकदम मजबूत सॉलिड फौलाद बना है एंड डिफेंस सिस्टम बना के रखा है कि खुद बॉडी इसको टेक ओवर कर लेती है कि ना, ताकि ये वायरस आ भी गया तो बॉडी क्लियर कर देती है। तो अगर ये वायरस आया और बॉडी इसको ओवरकम नहीं कर पाए ड्यू टू इम्यूनोडेफिशिएंसी, वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर क्या क्या हुआ है? आपके कोई इम्यूनोडेफिशिएंसी यानी एचआईवी जैसे एग्जांपल के लिए आपको और कोई बीमारी जिसके कारण आपका इम्यूनिटी वीक है, आप स्मोक कर रहे हो जिसके कारण आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है, कोविड की वजह से भी हो सकता कोविड की वजह से इसका कोरिलेशन नहीं है। अच्छा। देन उसके अलावा मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स ताकि आपका एक्सपोजर उससे कारण बढ़ रहा है, ठीक है। मल्टीपल चाइल्ड बर्थ अगेन जिसके कारण एक्सपोजर जो रिपेयर मैकेनिज्म्स हैं वो सर्विक्स की बॉडी की वहां पर हो रहे हैं, तो उसके कारण इसका रिस्क बढ़ जाता है एंड दैट लीड्स टू दिस सॉर्ट ऑफ अ कैंसर। नाउ अब इतना अगर आप मेरे को समझ आ गया है तो ऑब्वियसली प्रिवेंशन में इंपॉर्टेंट क्या हुआ? राइट एज पे वैक्सीन लेना। एंड राइट एज क्या है? आइडियली जो रिकमेंडेशन है 9 इयर्स की एज से लेके अप टू 22 का रिकमेंडेशन है। एक्सटेंडेड वैक्सीनेशन में अप टू 26 तक ये रिकमेंडेड रहता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द फीमेल्स दे गेट सेक्सुअली एक्टिव बाय दिस एज, दैट इज व्हाई दिस रिकमेंडेशंस आर मेड। एंड 9 से 13 के एज ग्रुप में अगर जो लोग वैक्सीन लेते हैं जनरली 2 डोज सफिशिएंट रहते हैं एंड 13 के बियॉन्ड जनरली 3 डोजेस रिकमेंडेड होते हैं। अब ये सुनने के बाद लोग बोलते हैं कि यार अभी हमने तो पहले लिए नहीं, हमें पता नहीं था, अब वैक्सीन लें कि नहीं लें। तो आप वैक्सीन ले सकते हैं, उसका कोई हार्म नहीं है, बट शायद उसका प्रोटेक्टिव इफेक्टिवनेस या एफिकेसी है वो शायद आपको उतना नहीं मिलेगा। एंड उन लोगों के लिए हमारे पास कुछ और तरीके हैं जिसके बारे में बात करेंगे, सर्वाइकल स्क्रीनिंग, पैप स्मीयर वगैरह, जिसके थ्रू आप सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं। Okay, that's great. So, what are the other gynecological cancer? You just told me there are, uterine and ovaries and everything. Please shed a light on it. Let's dive deeper into that. उसमें से सबसे ज़्यादा हार्मफुल मुझे तो अभी सर्विकल कैंसर ही लग रहा है, बट उससे ज़्यादा हार्मफुल कौन सा है, which is very deadly? अभी जब मैंने सवाल पूछा मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 शैतानें चूज कर कौन सा शैतान सबसे ज्यादा खराब है। शैतान सारे शैतान है, अच्छा शैतान तो कोई होता ही नहीं। सो अब उससे पहले अपन डाइव करें क्या कौन सा वैरायटी है। लेट्स अंडरस्टैंड गायनेकोलॉजिकल कैंसर। इस टर्म का मतलब क्या है? काफी भारी भरकम टर्म लगती है, मुझे भी एक टाइम में समझ नहीं आती थी। सो गायनेकोलॉजिकल मतलब फीमेल बॉडी रिलेटेड कैंसर। सो इसमें सारे जो फीमेल बॉडी रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं उसके कैंसर्स को हम क्लब करेंगे तो दैट इज नोन एज गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स। तो ये सारे कैंसर अलग अलग हैं, सबके अपने अलग अलग ट्रीटमेंट मोडालिटी हैं। एंड अगेन एक जो कॉमनेस मिथ जो लोगों को रहता है कि गायनेकोलॉजिकल कैंसर है तो हम गायनेक को दिखाएं, तो इज अगेन नॉट द राइट स्ट्रेटजी ऑल टुगेदर। आप दिखा सकते हैं, मैं नहीं कह रहा गायनेक नहीं देख सकते हैं, नहीं कर सकते, बट एक्चुअल में थिंकिंग कि गायनेकोलॉजिस्ट गायनेकोलॉजिकल कैंसर ट्रीट करेंगे, कहीं ना कहीं उसमें शॉर्टकमिंग्स आ सकते हैं बिकॉज़ दे आर नॉट absolutely trained for treating cancer. They are basically trained for treating the simple जो non cancers जो गायनेक प्रॉब्लम्स होते हैं या चाइल्ड बर्थ जो है उनके ऊपर ट्रेनिंग रहता है, तो इसलिए ये टर्म थोड़ा कई बार मिसलीडिंग हो जाता है। That's why I wanted to clarify this. Now जैसे हमने बात किया ब्रेस्ट कैंसर, अगेन कॉमनेस्ट कैंसर, थैंकफुली सोशल मीडिया एंड सोशल कैंपेन्स एंड ड्राइव्स ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मुझे शायद ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। लोग आज बहुत ज्यादा गूगल अवेयर एंड सोशल अवेयर हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। अनफॉर्चुनेटली सबको ब्लू ये अपना पिंक रिबन सबको पता है एंड लोगों को लगता है कैंसर का सिंबल है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज पीपल डोंट नो कि दैट पिंक रिबन रिप्रेजेंट्स ओनली ब्रेस्ट कैंसर। देयर आर रिबन्स फॉर एवरी अदर कैंसर आल्सो। देयर इज अ टील कलर जो सर्वाइकल कैंसर को अवेयर करवाता है एंड उसका सर्वाइकल कैंसर का पूरा महीना आपको अवेयरनेस कराने के लिए डे भी है, लेकिन लोग उसके बारे में बात नहीं करते। गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स बचे हुए यानी कि यूट्रस कैंसर, ओवेरियन कैंसर्स जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। ओवेरियन कैंसर अगेन इज अ वेरी डेडली कैंसर, ये काफी केसेस में एडवांस स्टेज में डायग्नोस होता है। अगेन उसके लिए पूरा मंथ है, सितंबर मंथ गायनेक कैंसर्स की अवेयरनेस मंथ की तरह सेलिब्रेट करते हैं हम लोग एंड एक पूरा डे है, लेकिन स्टिल पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट। रीजन बीइंग हमारा सोसाइटी का एक एटीट्यूड। Yes. You might be aware. I was coming back to that. So अपन उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। Now coming back to the topic कि ये सारे कैंसर्स गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स हैं। अब इसमें से ये पांचों जो मोस्ट जो प्रोमिनेंट कॉमन डे टू डे लाइफ में हम जो कैंसर देखते हैं वो ऑब्वियसली ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर्स, यूट्रस का कैंसर यानी गर्भाशय कैंसर्स एंड अपना जो ओवरी का कैंसर है, ये हम देखने को मिलते हैं। अब अगेन इनका प्रेजेंटेशन सबका अलग अलग रहता है। जो गर्भाशय का बुक का कैंसर है
ये मैंने जैसे बताया 30 to 60 की एज ग्रुप में या उसके बाद भी मिल सकता है, उसमें ज्यादा कॉमन रहता है। सिम्टम्स जनरली अगेन बिकॉज पेन नहीं होता स्टार्टिंग में, लोग लेट डिटेक्ट होते हैं। कलरलेस डिस्चार्ज पानी जो आता है, अगेन प्रॉब्लम क्या है कि डिस्चार्ज इन फीमेल्स खासतौर से सेक्सुअली एक्टिव हैं, इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमेनन सिम्टम जो मतलब डे टू डे लाइफ में सबको कभी ना कभी होता है, इसलिए पीपल कीप इग्नोरिंग। बट अगेन टू हाईलाइट यहाँ पे जो चीज क्या है कि मोस्ट ऑफ दिस जो डिस्चार्ज है आप नॉर्मल एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो सेटल हो जाता है, एंड जनरली वो फॉल स्मेलिंग है, थोड़ा थिक रहता है, एंड जब इस डिस्चार्ज की हम बात करें ये वाटर टाइप भी रहता है एंड स्मेललेस रहता है इनिशियली। तो अगेन इस तरह के जो सिम्टम्स अगर आ रहे हैं आपको 2 वीक से ज्यादा हो गए तो प्लीज इग्नोर मत करिए एंड प्लीज सीक एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर। एंड इसके अलावा फिर ब्लीडिंग आफ्टर इंटरकोर्स, सेक्स के बाद ब्लीडिंग होना, कमर के नीचे के हिस्से में पेन होना, पेट के नीचे के वाले हिस्से में पेन होना, ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं। जब हम बात करते हैं यूट्रस कैंसर की, मोस्ट ऑफ टाइम्स जो इसके सिम्टम्स हैं तो ये कैंसर जनरली पीरियड्स बंद हो जाते हैं पोस्ट मेनोपॉज, यानी मेनोपॉज आ गया उसके बाद वाली फीमेल्स में, खासतौर से अगर आप डायबिटिक हैं या ओवरवेट हैं उनमें ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो पीरियड्स बंद होने का ब्लीडिंग आना, उसके अंदर ये एक वन ऑफ द वार्निंग साइन हो सकता है। अगेन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, मेनी टाइम्स बिकॉज ब्लीडिंग है लोग आ जाते हैं, लेकिन कई बार लोगों को एक अगेन वो कहते हैं ना चाचा ताऊ सो मौसी, इस तरह मौसी और फूफी भी होती हैं, तो वो बताती है कि अरे यार पीरियड्स बंद होते हैं तो एक आधी ब्लीडिंग हो सकती है, तो इस चक्कर में लोग कई बार उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। एंड दैट जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होता है डायग्नोस करने का, दैट इज ट्रू कि हाँ कभी-कभी ब्लीडिंग हो सकती है पीरियड के बंद होने के बाद, मोस्टली वो ब्लीडिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर होती है पीरियड बंद होने का, लेकिन एक साल के बाद अगर कोई भी ब्लीडिंग होती है तो मैं सिंसियरली एडवाइस प्लीज उसको इग्नोर मत करिए, एक बार डॉक्टर को जरूर विजिट करिए, कोई हार्म नहीं है वो डिस्कस करने के। दैट वुड बी द फर्स्ट वार्निंग साइन। एंड अगेन जो लोगों का मेनोपॉज नहीं है तो उसमें ड्यूरिंग पीरियड्स ब्लीडिंग, यानी कि पीरियड्स आपके मंथली जो आते हैं उसके बीच में ब्लीडिंग आना, रिलेशन के ब्लीडिंग आना, दैट कुड बी साइंस ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर एंड सम अदर रेयर वैरायटी ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर्स कैन प्रेजेंट वेगली आल्सो, जस्ट लाइक ओवरी कैंसर जिसमें वेग सिम्टम्स रहते हैं कि पेट भरा भरा है, पहले 2 चपाती खाते थे आजकल 1 चपाती में पेट भरा भरा लगता है। अगेन प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम सब लोग कहते हैं यार बाहर खाना खाया था शायद इसलिए हो गया होगा, तो हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आप कॉमन सेंस यूज करिए कि अपन बाहर खाना खाते हैं तो पेट भारी कितने दिन लगेगा, 1 दिन 2 दिन 5 दिन, उसके बाद तो नॉर्मल होगा कभी ना कभी। अगर ये चीज आपको हफ्ता 10 दिन हो गया है, 2 हफ्ते ज्यादा हो गए, प्लीज इसको इग्नोर मत करिए, स्पेशली अगर आपकी एज 40 या उससे ज्यादा है, बिकॉज़ दिस कुड बी द फर्स्ट साइन ऑफ ओवेरियन कैंसर एंड दैट इज द रीजन कि बिकॉज़ ऑफ ये ओवरलैपिंग सिम्टम जो बिनाइन कंडीशन के साथ रहते हैं, पेशेंट्स काफी लेट स्टेजेस में हमारे पास आता है, क्योंकि कई बार ओवरी कैंसर्स में वो बड़ी-बड़ी ओवरी गांठें नहीं बनती जो लोगों को लगता है अरे ओवरी कैंसर बड़ी गांठ बनेगी, एंड उसकी बजाय वो कैंसर पेट में फैल जाता है एंड उसके साथ लोग प्रेजेंट करते हैं। एंड हमारी चीज ये है कि इस स्टेज में भी ट्रीटेबल रहता है, लेकिन लोगों को लगता है फैल गया तो वैसे भी ठीक नहीं होने वाला, तो दैट इज वेयर द गैप लाइज इन द अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस कैंसर्स। Okay, that was very insightful answer. So yes, I was coming back to the point that which I love to discuss, because periods जैसी बात पे in India particularly people think this is very taboo, so they don't discuss it, and because of that a lot of women are facing gynecological problems and they just go shush about it, they don't discuss it. So what are the common problems they face regarding access to the screening and treatment because of that social notions and everything? So sometimes I feel we are living in a hypocritic world. अगेन ये I would say कि कई बार ये मीडिया में डिस्कस भी हो चुका होगा कि हमारा जो सिविलाइजेशन है, हम किससे आते हैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, जहाँ पे वो सब पेंटिंग्स वगैरह सब कुछ है, we all know कि what I'm referring to, right? And then at the same time हम लोग है ना सब मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, एंड जब हेल्थ की बारी आती है तब हम एकदम ऐसे हो जाते हैं। सो कहीं ना कहीं ये हिपोक्रेटिक एनवायरनमेंट से हमें बाहर आना पड़ेगा। थैंकफुली Tier 1, Tier 2 cities के अंदर the trend is changing and people are, especially female, are coming directly forward and talking about their health. But बाकी जगह ये चेंज आना अभी बाकी है। लोग इसको गलत उससे लेते हैं क्योंकि इनको लगता है कि अगर इसके बारे में बात करेंगे तो people will start questioning their character, people will start questioning उनका behavior, sexual behavior, and कहीं ना कहीं उससे रिलेट करने के कारण लोगों को लगता है कि इस बारे में बात नहीं करें ज़्यादा अच्छा है। तो प्लीज माय सिंसियरेस्ट अर्ज कि इस चीज से आप बाहर निकलिए। अगर आप बात नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा प्रॉब्लम कहाँ है, एंड इसके लिए हम लोग एक्चुअली हर साल एक कैंपेन भी चलाते हैं। सितंबर मंथ के अंदर मैं कई बार रेडियो से प्रोग्राम कर चुका हूँ, कई सारे आर्टिस्ट ने मेरी हेल्प करा है कि डोंट हाइड लेट्स स्टॉप, ये एक वन ऑफ द क्लोजेस्ट टॉपिक है टू माय हार्ट, क्योंकि फीमेल्स दे प्ले अ वेरी डोमिनेंट रोल, जैसा हमने स्टार्टिंग में बात किया इन सोसाइटी, तो दे नीड टू कम आउट एंड स्पीक फॉर देमसेल्व्स। Okay.
So that's great. And I was thinking कि इस after a lot of conversation with treatments and cancer, इसमें तो फिर robotic treatment ही होती होगी because of minimal invasive surgery. So again, treatment cannot be stereotyped कि नहीं हर किसी को robotic करेंगे. Again मैंने जैसे पहले बोला, it depends on the indications. Now let's talk about कि endometrial cancer जो normally मैंने जैसे कहा कि old age ladies में ज़्यादा common रहता है. Most of these ladies are fatty, obese. मैंने आपको शेयर किया एग्जांपल 140 kg प्लस लेडी को भी ऑपरेट किया है एंड आई ऑपरेट मेनी 100 kg प्लस लेडीज जो डायबिटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस और पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम के साथ आए थे. एंड इस तरह के केसेस के अंदर बिकॉज ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो यस वहाँ पे मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी प्लेज अ वेरी बिग रोल एंड वहाँ पे लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक आज की तारीख में अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो यस आई वुड प्रेफर रोबोटिक बिकॉज ऑफ सर्टेन एडवांटेज ओवर लैप्रोस्कोपी. बट कुछ केसेस में इवन लैप्रोस्कोपी कैन बी गिवन. ऐसा नहीं कि हर किसी को मैं रोबोटिक के लिए पुश करूं बिकॉज आई डू बोथ द सर्जरीज. It should not be stereotyped and patient के हिसाब से choose करना है. We don't need to push a technology, but technology should be chosen as per the needs and the benefits of the patient. Then बात करते हैं ओवरी कैंसर्स की. ओवरी कैंसर्स जैसे मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ देम दे कम इन स्टेज 3C एंड स्टेज थोड़ा सा रिलेटिव लेट स्टेज में आते हैं. सो अगेन उसमें जो लैप्रोस्कोपी एंड रोबोटिक सर्जरी का बहुत ज्यादा रोल रहता नहीं एंड उसमें हमने जैसा एक एपिसोड किया था हाइपेक सर्जरी का. तो हाइपेक सर्जरी या फिर बिना हाइपेक वाली साइक्लोरेक्टल सर्जरी डिपेंडिंग ऑन द स्टेज उसका एक मेन रोल रहता है. यहाँ पे ओवरी कैंसर में समझने वाली चीज क्या है कि लोग कई बार मिसगाइड होते हैं कि अरे हम लोगों ने गायनेक से मिले थे या सो कॉल्ड कई बार again don't get me wrong on this, I'm not discrediting or disregarding anybody कि gynec oncologist. So what they need to understand कि जो लोग specifically gynec onco काम कर रहे हैं मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इसको routinely treat नहीं कर रहे हैं एंड जो इसको हाफ हार्टेडली खाली यूट्रस निकाल दिया, ओवरी निकाल दिया, ये थोड़ा सा जो हमारी भाषा में ओमेंटम में चर्बी निकालना, उस तरह की हाफ हार्टेड सर्जरी करके जिसे डीबल्किंग सर्जरी बोलते हैं, जो एक पुराने टाइम समय की बात है एंड बाद में उम्मीद करें कि कीमो विल डू वंडर्स. उनको मैं क्वेश्चन कर रहा हूं यहाँ पे कि अगर कीमो कोई काम कर रहा है तो सर्जरी करने की जरूरत ही है. व्हाई डू सर्जरी एट ऑल, लेट कीमो डू द वर्क. बिकॉज ओवरी कैंसर में एज अ पेशेंट आपके पास एक ही चीज है जो एक वेरिएबल फैक्टर है, जो बाकी सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है. एक ही चीज जो कंट्रोलेबल है आपके हाथ में कि आपकी क्वालिटी ऑफ सर्जरी या आप सर्जन आप चूज कर सकते हैं जो एक आपको एक रेडिकल सर्जरी दें, पूरा कंप्लीटली रिमूव करके दें. तो दैट इज माय बिगेस्ट एडवाइस टू द पेशेंट्स कि प्लीज चूज अ सर्जन जो साइक्लोरेक्टल सर्जरीज बहुत रूटीनली कर रहे हैं एंड इसको पूरा तरीके से निकालें. एंड हाईपेक जैसा हमने डिस्कस किया, नॉट एवरीबॉडी मे बेनिफिट विद हाईपेक. सो अगेन डिस्कस विद डॉक्टर कि हाईपेक का बेनिफिट कितना परसेंट चांसेस है. अगर वो है देन ओनली गो फॉर इट. तो एडिशनल कॉस्ट एंड एडिशनल टॉक्सिसिटी के बारे में बात करें. मैं हाईपेक कर सकता हूं, उसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को मैं हाईपेक करूंगा एंड आप करवा सकते हैं, इसका मतलब नहीं कि आप हर किसी को हाईपेक करवाना चाहिए. यू हैव टू चूज द ट्रीटमेंट व्हिच सूट्स यू द बेस्ट. इसी तरह अभी सर्वाइकल कैंसर जिसकी हमने बात करी, सो मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में अभी भी जो आते हैं दे कम इन लेट स्टेजेस, जिसमें सर्जरी का रोल फिर कम हो जाता है एंड फिर कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन का रोल ज्यादा हो जाता है. अर्ली स्टेजेस में अगर पेशेंट आते हैं तो सर्जरी से पूरा क्योरेबल रहता है. डिपेंडिंग ऑन द स्टेज हम इसको लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक या ओपन तीनों से कर सकते हैं जिस स्टेज में पेशेंट आता है. Okay. So after hearing all this, I am really thinking about the complications after surgery. If someone is having one of these gynecological cancer, except breast cancer, let's not discuss about it. But जो uterus के part का related जो cancer है, गायनेकोलॉजिकल, उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है पोस्ट सर्जरी एंड पोस्ट ट्रीटमेंट एंड उसमें क्या क्या चीजें सॉल्व कर सकते हैं. सो अबाउट दैट प्लीज शेयर. सो आई लव दिस कि ब्रेस्ट को रहने देते हैं. दैट मींस इवन एज अ लेमैन पीपल अंडरस्टैंड कि ब्रेस्ट सर्जरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. सो नाउ टू थ्रो मोर लाइट इनटू इट, मोस्ट ऑफ द कैंसर सर्जरीज आज की तारीख में दे हैव बिकम लेस रिस्की. So अगर हम बात करें endometrial cancers and even cervical cancer surgery की, if somebody who's trained to do this surgeries and जो routinely surgeries कर रहे हैं उनके हाथों में generally कोई major complication हम expect नहीं करते. And most of these patients, I would say almost close to 99-100% patients will have no major consequences of this surgery and they recover really well. So mainly problem कहाँ पे आती है? पोस्ट सर्जरी के बाद जो कुछ issues होते हैं, जैसे एग्जांपल इन सर्जरीज के अंदर जो वजाइनल लेंथ जो होती है उसकी शॉर्टनिंग वगैरह होना, जिससे कि सेक्सुअल लाइफ वगैरह के अंदर कभी-कभी जो इश्यूज आते हैं. सो दैट इज समथिंग जो टॉपिक इसके अंदर हम बात ही नहीं करते. हम सोचते हैं कैंसर ठीक हो गया उसके आगे बात करने की जरूरत क्या है.
but it is beyond खाली कैंसर ट्रीट नहीं करना है, we need to talk beyond that, and obviously उसके लिए we have a team जो काउंसिल करती है, we help them the ways कि कैसे करना है, रेडिएशन के बाद फिर ड्राइनेस होना, vaginal dryness होना, again that affects the quality of life, sexual life, तो those sort of things are the major challenges. कई बार इनफर्टिलिटी का फैक्टर आते हैं क्योंकि लोग शादी हुई है, बच्चे हुए नहीं, उससे पहले कैंसर आ गया, तो उसमें यूट्रस निकालना पड़े, एग्स निकल अपना ओवरी निकालना पड़े, तो दोज आर द चैलेंजेस एंड वहां पे वी नीड टू मतलब डिस्कस सर्टेन स्ट्रेटजीज, कई बार कुछ इंडिविजुअलाइज्ड प्लान्स बनाने पड़ते हैं इफ वी कैन हेल्प देम ओवरकमिंग दिस इश्यूज. एंड ओवरी कैंसर्स के अंदर सर्जरी के ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया, साइड सर्जरी एंड हाइपर सर्जरी के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया कि हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ सेंटर जो इसको रूटीनली कर रहे हैं, जो हाई वॉल्यूम्स कर रहे हैं जैसे हमारा सेंटर, वहां पे इट इज जस्ट लाइक एनी मेजर रूटीन सर्जरी, बट जो साइड इफेक्ट्स कीमो रिलेटेड रहते हैं वो अनकंट्रोलेबल रहते हैं, खासतौर से अगर आप डायबिटिक्स हैं तो हाथ में झुंड पड़ना, सुन पड़ना, तो वो सारे साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं. अगेन एज अ टीम वी ट्राई टू ऑफर द सॉल्यूशंस फॉर देम एंड इंडिविजुअलाइज तरीके से हम लोग जो भी बेस्ट कर सकते हैं पेशेंट के लिए, ट्राई टू डू फॉर दैट. Okay, that was a great answer. So I really wanted to ask this: at what particular age the girl get this kind of cancer? Because vaccine का भी scenario है, and इसमें वो भी scenario है कि sexually active होने के बाद ये cancers शुरू होते हैं or something kind of that. तो at what particular age ये cancer के diagnosis होते हैं, and उसमें कौन सी ऐसी treatments हैं जिसमें आप ज़्यादा deep से हम बात कर सकते हैं? So I would put it this way, कोई भी एज इम्यून नहीं है इस कैंसर के होने के लिए. When I talk about कि वैक्सीन का एंड सब एक्टिविटी का, जो सेक्सुअल एक्टिविटी का, I was talking about cervical cancer in general. Okay. But ovary cancers can happen, एक variety of ovary cancer जो young girls में होती है, जिनकी puberty भी नहीं आई होती, germ cell tumors में उनमें भी देखा जा सकता है. Okay. So there is no age which is immune to cancer, so that is not the right thing. तो फिर वो तो genetic होते होंगे, genetic जरूरी नहीं है ना, it's a variety of cancer. It can happen without genetics also. So that is just they are unfortunate. That's why they. किसी को भी कैंसर हो, he is not fortunate. So तो फिर तो ये इसका कॉज पता ही नहीं चल रहा कि क्यों ओवरीज हो रहा है. So हर मैंने कहा ना, साइंस नो द कॉज ऑफ ओनली 25 to 30%. अगर आज मैं बोल रहा हूँ, ऑनेस्ट एडमिशन कर रहा हूँ, ये 100% हमें भी नहीं आता. Okay. So yes, coming back to the point, कि what was the what are the more treatments and details we need to discuss? Treatment I guess we have discussed more or less in details. एक कॉमन चीज जो मैं शायद टच करना भूल गया था, लैप्रोस्कोपी एंड रोबोटिक के बीच में हाउ टू चूज इट. सो हमने जैसे पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ रोबोटिक सर्जरी ओवर लैप्रोस्कोपी. अगेन एंडोमेट्रियल कैंसर वाले पेशेंट के अंदर व्हाट आई हैव सीन पर्सनली फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, जो पेशेंट्स आके मुझे बताते हैं, कई बार रोबोटिक सर्जरी वाले पेशेंट्स का जो फीडबैक मुझे मिला है कि दे हैड लेसर पेन एंड दे रिकवर्ड मच फास्टर. अगर मैं उस चीज को साइड में कर दूं, आई डोंट सी मच ऑफ अ डिफरेंस पर से इन रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर्स. बट यस, रिकवरी, आई एम नॉट टू जज फॉर अ पेशेंट की विच अगर मेरे को सर्जरी करानी है, मैं ऑब्वियसली देखूंगा मुझे थोड़ा सा पेन ना हो और मैं फटाफट रिकवर हो जाऊं. तो शायद मैं अगर ये चीज सुन रहा हूं तो मैं कहूंगा रोबोटिक इज द बेस्ट ऑन मी, but it might not be true for everybody, so it's a personal choice. But otherwise both surgeries are equally good for any patient. बट मोर इम्पोर्टेंट जो है स्क्रीनिंग के बारे में एक अपन रह गया डिस्कस करना, कि हम बात कर रहे थे कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं ले पाए दे कैन ऑप्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल स्क्रीनिंग, जो रिपीट अपना ईयरली पैप स्मेयर करा सकते हैं 21 to 30 इयर्स की एज में, एंड बाद में एवरी 3 ईयर, या फिर अगर आप एचपीवी को टेस्टिंग यानी साथ में एचपीवी का टेस्ट करा रहे हैं एवरी 5 ईयर आप ये एक स्क्रीनिंग प्रोसीजर करा सकते हैं. इससे इट कैन बी डिटेक्टेड एट अ अर्लियर एज एंड इट कैन बी ट्रीटेड इन अ मच बेटर मैनर. Okay. And जिनको हाई रिस्क है, लाइक एग्जांपल पे ओवरी कैंसर्स एंड एंडोमेट्रियल कैंसर्स का फैमिली हिस्ट्री है, दे नीड टू डिस्कस विद द डॉक्टर्स अबाउट प्रिवेंटिव सर्जरीज या फिर कैंसर स्क्रीनिंग्स के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं. Okay. So last question of this topic, that what are the lifestyle changes one needs to be done to not get affected by this kind of things? So I would look repeated जब मैं इसी में बोलूँगा स्वस्थ खाओ, स्वस्थ रहो, स्वस्थ जियो, और स्वस्थ रहना नहीं एक्सरसाइज वगैरह करो, because basically lifestyle में more or less it is the same thing, but only thing that you can add on this जो सारी चीजों के अंदर 3 चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं. वैक्सीन के लिए encourage करिए. The cost of a vaccine जो आपके स्मार्टफोन है उससे भी सस्ता है, जो तीनों वैक्सीन का. तो इस दिवाली या इस होली जो भी आपको फेस्टिवल में आप गिफ्ट करते हैं, तो प्लीज वैक्सीन गिफ्ट करिए अपने क्लोज वन को. देन सेकंड इज सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग. मैं हमेशा एक लाइन टैगलाइन है मेरी, हर 3 साल में 3 मिनट अपनी जिंदगी के लिए
यानी कि एक पैक्शन कराने में आपको 3 मिनट लगते हैं और 3 साल में आपको एक बार कराना है। तो आप ये 3 एंड 3 का फॉर्मूला अगर याद रखेंगे, you can save yourself from cervical cancer. So that is something one should be taking care of. Sexual life जो है, healthy sexual life आप जिए, multiple partners avoid करिए and use protections. That is something I would like to add on top of what we discussed in terms of other cancers. Okay, that's great. We clearly tried to uncancer this gynecological cancer, and I really, enjoyed it. So, and thank you so much. I hope you guys also enjoyed it. Thank you so much for watching, and we are gonna move to the last episode of this